बच्चों हमने स्टार्ट किया था कंजम्पशन फंक्शन एंड कंजम्पशन थ्योरीज। इसमें सबसे पहले हमने वी स्टडीड अबाउट द केंद्रीय कंजम्पशन फंक्शन, and then today we have to study about the absolute income hypothesis, which is an extended version of Keynesian theory of consumption. Keynesian theory of consumption में शुरू में हमने यहाँ काफ़ी डिटेल में देखा है कि how we can calculate MPC, APC, and that the consumption function is non-proportional. Non-proportional mean that as income increases, consumption also increases, but less than increase in income. And it was about short run consumption function, it was not about the long run consumption function. और इसकी important implications थी, for example according to classical economists supply creates its own demand sales law, but it was a negotiation, it negates the sales law. मीन के सेल्स लॉ में आपकी सप्लाई जो भी क्रिएट होगी उससे इनकम जनरेट होगी और उस इनकम से एग्रीगेट डिमांड जनरेट होगी, तो इस तरह सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड. बट अकॉर्डिंग टू Keynes के all increase in income does not go to the consumption, some of the part is saved, so always supply don't create its own demand, and so there is a possibility of overproduction and also of unemployment. इसको अलावा इसकी इम्प्लीकेशन में हमने पढ़ा टर्निंग पॉइंट ऑफ बिजनेस साइकिल के इकोनॉमी में बिजनेस जो ट्रेड साइकिल या बिजनेस साइकिल होते हैं, बूम और रिसेशन क्यों आता है, एंड इट इज निगेशन ऑफ सेल्स लॉ. It also again explain the importance of aggregate demand. If supply is not creating its demand, that in that case aggregate demand should be increased by the government intervention as with the help of fiscal or monetary policy. And oversaving economy, income propagation. इसके अलावा हमने सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स पढ़े और अदर determinants of the consumption, for example price expectations, interest rates, changes in distribution of income, consumer assets. Today we have to start the absolute income theory. Absolute income theory is an extended version of Keynes laws of consumption, that the portion of income devoted to consumption remains constant over time. For example, other things remaining equal, a rise in absolute income will lead to a decrease in the fraction of that income devoted to the consumption. That it means that consumption function is non-proportional. Non-proportional means 100% increase in income is not devoted to consumption. The development of the absolute income theory is attributed to the James Tobin, and he explained it with the help of cross sectional data. क्रॉस सेक्शनल डाटा क्या होता है, जो ओवर टाइम आप कलेक्ट नहीं करते बल्कि इन अ गिवन ईयर और इन अ गिवन टाइम पीरियड आप डिफरेंट यूनिट्स को स्टडी करते हैं, मतलब डिफरेंट फैमिली इनकम्स को आप स्टडी करें एक किसी गिवन ईयर में, तो ये होगा आपका क्रॉस सेक्शनल डाटा. लेकिन अगर आप सेम यूनिट्स को कई साल तक स्टडी करें तो ये होगा आपका टाइम सीरीज डेटा. और अगर आप ये दोनों काम इकट्ठे करें कि आप 10 to 15 या 100 आप यूनिट्स ले लें, क्रॉस सेक्शनल डाटा हो गया, उनको 20 ईयर्स के लिए आप स्टडी करें तो ये आपका कहलाएगा पैनल डाटा. So first of all, Kuznets proved the Keynesian consumption function with the help of cross-sectional data. ये real data है households का cross-sectional data, which is taken from the household survey. And according to this, when the family income was about 1,000, family disposable income was $614 after paying the tax, and family consumption expenditures were 12.1278. And when we divide this consumption with the total disposable income of the family, average propensity to consume of this family is 2.1. यहाँ पे ये जो स्मॉल है इसका मतलब ये है कि इस इनकम लेवल पे जितनी भी फैमिली जिनकी इनकम 1,000 थी उनकी लेके और एपीसी निकाली हुई है. अगर यहाँ पे कैपिटल, बच्चों आपको आवाज आ रही है? मैम कट रही है. बच्चों अगर कोई आवाज का प्रॉब्लम है तो मुझे बताइएगा. मैम ठीक आ रही है आवाज आपकी.
सीआर आपको आवाज आ रही है? जी मैम, मुझे तो ठीक आ रही है आवाज। मैम अब बिल्कुल ठीक। जी बच्चे, क्या कहा आपने? मैम अब ठीक है। आ रही है, आप ये कह रही है ना? मुझे इसमें आपकी लोगों की आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। जी मैम, आ रही है अभी आवाज, ठीक है। अगेन ये मैं कह रही हूँ, यहाँ पे जो इन्होंने कैपिटल ए के बजाय स्मॉल ए लिखा है, इसका पर्पज ये है कि इस इनकम लेवल पे जितनी भी फैमिली थी, ये उनकी इनकम का एवरेज ली हुई है, उनकी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है। जो कैपिटल ए के साथ एपीसी लिखते हैं इस बुक में, उसका पर्पज है कि जो आप ओवरऑल सबका इनकम लेवल की जो उस टाइम पीरियड में इनकम फैमिली इनकम से उन सब की एग्रीगेट की जो आप एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम लगाते हैं, उसके लिए कैपिटल ए यूज हुआ है। अगेन इनकम लेवल अगर 1000 से अबव और डिस्पोजेबल इनकम 1532 है और आपकी कंजम्पशन 1768 है, तो यू गेट इट 1.2 एंड देन 1.1 1.0 1.0 1.0 0.9। तो आपकी एवरी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पहले इंक्रीज हुई है, विद द पैसेज ऑफ टाइम इट इज विद द इंक्रीज इन इनकम इट इज डिक्रीजिंग। टाइम का यहाँ बात नहीं हो रही। एंड मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आप ये देख रहे हैं कि 0.9 0.9 0.9 0.8 0.7 मीन के ये पहले इंक्रीज हुई है और फिर डिक्रीज हो रही है, लेकिन ये किसी भी टाइम पीरियड में 1 या 1 से अबव नहीं है। इट्स मीन के कंजम्पशन फंक्शन इज नॉन प्रोपोर्शनल। अगर ये 1 होती है तो इट्स मीन कि आपकी जितना भी इंक्रीज इन कंजम्पशन था आपने स्पेंड कर दिया। इफ इट इज लेस देन 1, इसका मतलब है कि सम पार्ट ऑफ इनकम इज सेव्ड एंड सम पार्ट ऑफ इनकम इज कंज्यूम्ड। Again, given the data, if we draw the consumption function, we get this type of the consumption function. यहाँ पे आपने x एक्सिस पे डिस्पोजेबल इनकम ले ली और y एक्सिस पे आपने consumption ले ली. At the point when the income was 4,452, at that time consumption was 4,450. मतलब तकरीबन ये equal ही है. At this point, if we divide the consumption with income, we get the answer is 1. When answer is 1, we are at 45-degree line, and it is called the break-even point of income. Below this level of income, there are negative savings and consumption is above the income, mean आपकी consumption ज़्यादा और आपकी income कम है. Above this income level, your consumption is less than your income level and your savings are positive. And it is called the break-even point of income. It means that when the income level increases, consumption increases, but less than income and saving increases with the increase in income. There was another aspect of the Keynesian psychological law of consumption of absolute income theory, which says that along with the increase in absolute income, every propensity to consume goes on to fall. पीछे हमने केंजियन कंजम्पशन फंक्शन में भी ये पढ़ा है, और इसके अलावा एब्सोल्यूट इनकम थ्योरी भी ये कहती है कि जब आपकी इनकम लेवल एब्सोल्यूट इनकम लेवल इंक्रीज होता है तो आपकी एपीसी एवरी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम डिक्रीज होगी. आपकी कंजम्पशन इंक्रीज होगी लेकिन इतनी नहीं जितनी इनकम होगी. इस व्यू पॉइंट को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? आपका वही गिवन फंक्शन कंजम्पशन फंक्शन जो आपने लॉन्ग रन के लिए ड्रॉ किया, इसको यहाँ पे मौजूद रहने दें. अगेन आप एक्स एक्सिस पे डिस्पोजेबल इनकम ले लें और आप वाई एक्सिस पे कंजम्पशन ले लें. पहले आप इसमें क्या करें कि ये लाइंस आप पहले ड्रा कर लें. सबसे पहले आप 45 डिग्री लाइन ड्रा करें. जो 45 डिग्री लाइन होगी उसका मीन है कि आपकी कंजम्पशन इज इक्वल ऑन ऑल पॉइंट्स ऑन 45 डिग्री लाइन शोज दैट. मोहम्मद अवैस, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो अपना माइक अनम्यूट कर ले, अदरवाइज यू हैव रेज्ड योर हैंड प्लीज. तो on 45 degree line, consumption is equal to income for all points on 45 degree line. तो आपकी जब consumption income की equal होगी, consumption divided by income will be equal to APC is equal to 1. उसके बाद जितनी भी लाइनें आप ये मैं आपको ड्रा करने के लिए बता रही हूँ, उससे थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे उससे
लोअर हायर स्ट्रोक के साथ आप ड्रा करेंगे, लोअर स्ट्रोक के साथ सॉरी आप ड्रा करेंगे तो दे आर शोइंग लेस एपीसी 0.9, 0.8, 0.7, 0.6। और एक लाइन जो इन्होंने यहाँ एंड तक ड्रा नहीं की वो है 1.2 के करीब आपकी एपीसी जो उनकी उसको वो शो कर रही है। अगर वो आप यहाँ पे ड्रा करें तो वो कुछ इस जगह पे करके होगा। इसके बाद ये ड्रा करने के बाद आप सबसे पहले यहाँ पे जहाँ पे 2000 है ऊपर एक पॉइंट दी, जिनकी आप पीछे अगर आपको डाटा भी है या आप माइंड में इसको वैसे रख लें कि जिन लोगों की 2000 मंथली इनकम है जो कि ज़ाहिर है या काफ़ी कम है तो उनकी एपीसी विल बी अबव 1 क्योंकि वो अपनी उनकी कंजम्पशन ज़्यादा और उनकी इनकम कम है। तो आप ये डी पॉइंट उस लाइन पे ड्रा करेंगे जहाँ पे आपकी एपीसी 1.2 आपने शो की है। उसके बाद 2 का डबल क्या होता है, आप ये मतलब स्केल भी यूज़ कर सकते हैं। तो 4000 इनकम वालों की आप उससे कम एपीसी होगी और वो आप लाइन 1 पे शो करेंगे। और जिनकी इनकम 6000 है उनकी उससे एपीसी कम होगी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और उसको आप एक लाइन मजीद कम 0.9 एपीसी के साथ शो करेंगे। जब आप ये तीनों ड्रा कर चुकेंगे तो अगेन आप फ्री हैंड के लिए एक और चीज़ की आपने ये शो करना है कि इनकम इंक्रीज हो तो कंजम्पशन इंक्रीज होती है बट लेस देन डबल। तो पहले आपने ये शो करना है कि ये जो फैमिली इनकम है जिनकी इनकम 2000 है उनकी 4000 हो जाएगी। तो ये तो पहले ड्रा है, यहाँ पे जो फैमिली है वो आगे को मूव कर जाएगी और ये फैमिली जो डी पे है ये इधर आ जाएगी ई पे। जो 4000 वाली फैमिली है उसकी इनकम डबल होकर 8000 हो जाएगी और 6000 वाली फैमिली की इनकम डबल होकर 12000 हो जाएगी। 10 आप ड्रा करेंगे लेकिन इसके ऊपर आप कुछ शो नहीं करेंगे। तो हर नेक्स्ट 2000 का जब आप गैप दे रहे हैं तो आप हर दफ़ा नेक्स्ट एवरी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम लाइन पे एक पॉइंट उसको लिख लें। यहाँ पे के लिखा होना था, लिखा नहीं है कि अगर किसी फैमिली की इनकम 10,000 हो तो उसकी एपीसी 0.70 होगी और फिर जिस फैमिली की 12,000 है उसकी 0.60 होगी। अब आप क्या करेंगे, डी ई जी जे यहाँ पे अगर के एल इन सब पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन कर दें तो आपके पास आ जाता है कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ डिस्पोजेबल इनकम। अब इसे आप कैसे प्रूव करेंगे कि इनकम डबल होने से कंजम्पशन डबल लेस देन डबल होगी, एबीसी डिक्रीज करेगी। कि आप ये कहेंगे कि फैमिली विच इनकम वाज 2000 and APC was 1.2, when its income doubles it come at this point 4000 and at point E and their APC is equal to 0. Is equal to 1. Sorry. And the family which was previous at this income level of 4000 is now at the 8000 and now they are consuming at this point J and their APC is equal to 0.8 which was before that was 1. Decrease होगी इनकी भी APC. Again you will say that the family with the income level at 6000 was at point G with the APC 0.9. Now it will move to this point with 12,000 income is doubled and their APC has fallen to 0.6 which was previously only 0.9. फिर आप इससे ये प्रेजेंट करेंगे और इसको इसी तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि when income doubles consumption increases but less than double. यहाँ पे इस पे जो भी इनकम लेवल में चेंजेस आने के साथ उनकी एपीसी एवरी टाइम उन्होंने कैलकुलेट करके दिखाई है कि वो फैमिली जिसकी इनकम 2000 थी उनकी कंजम्पशन 2400 थी डिवाइडेड बाय 2000 इज इक्वल टू 1.2। जब उनकी इनकम 4000 हुई तो उनकी कंजम्पशन भी 4000 हुई, 4000 डिवाइडेड बाय 4000 एपीसी इज इक्वल टू 1 एंड सो ऑन। सब फैमिली लेवल की अगर 4000 से उसी फैमिली की इनकम 8000 हो जाती है तो उनकी यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा गया, आप इसको ठीक कर लीजिएगा। यहाँ पे एक ना स्लैश डला होना चाहिए था। तो 6400 उनकी कंजम्पशन है डिवाइडेड बाय 8000 तो उनकी 0.8 एपीसी आ गई और ये सारी कैलकुलेशन यहाँ पे दी हुई। नाउ अब ये क्या था कि ये जो भी इसको कैलकुलेशन थी कि एक गिवन टाइम पीरियड के लिए फॉर ए गिवन ईयर उन्होंने फैमिलीज की इनकम के जो लोग 4000 वाले, 8000 वाले, 10,000 वाले के डिफरेंट इनकम ग्रुप्स में जो भी फैमिलीज हैं उनकी कंजम्पशन या एपीसी क्या है। और ये कि सिर्फ उसको अगर चेंज भी चेक की गई तो ये कि अगर एक साल में 2019 में ये है तो 2020 से उनकी इनकम डबल हुई तो उसको कंपेयर किया गया। बट when the analysis was extended to the time series data कि अगले कई सालों का आफ्टर वर्ल्ड वार एंड बिफोर वर्ल्ड वार का डाटा लिया गया तो उसमें कुछ रिजल्ट्स थे जो कि इस एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस से रिलेट नहीं करते थे।
ये स्टेटिस्टिक्स जो की डाटा 1929 टू 1968, मतलब ये काफ़ी सारे ईयर्स का डाटा डिफरेंट फैमिलीज के लिए, एक तरह का ये मे बी फाइनल डाटा था, जिसमें ये रिजल्ट उन्हें ऑब्जर्व किया गया, सामने आए कि इनमें से 39 ये टोटल ईयर थे, इनमें 13 ईयर्स ऐसे थे व्हेन एमपीसी वाज आइदर नेगेटिव, इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 1। क्योंकि हमने ये पढ़ा है पीछे के एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस में, ये केनजियन कंजम्पशन फंक्शन में, कि एमपीसी इज पॉजिटिव एंड बट इज ऑलवेज लेस देन 1। लेकिन कुछ साल ऐसे भी थे कि एमपीसी नेगेटिव थी, और कुछ साल ऐसे भी थे कि एमपीसी वाज इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 1। तो ये जो रिजल्ट थे, दीज वर नॉट proving that Keynes consumption or absolute income hypothesis is correct. Second result, which was not in the favor of the theory, was the magnitude of the MPC showed greater variation. Keynes, according to Keynes, MPC remained constant over time, but the data showed that there was a great variation in the marginal propensity to consume. और थर्ड सर ये था कि 40 में से 11 सालों में द एपीसी रोज विद द राइज इन इनकम, कि हमने क्या पढ़ा कि इनकम डबल होगी तो एवरी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम विल फॉल, लेकिन 40 में से 11 साल ऐसे थे, 40 इयर्स में से, व्हेन जब इनकम इंक्रीज हुई तो एवरी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इंक्रीज हुई इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग। अब के वो जो भी डाटा थे सारे ईयर्स का, फिर उन्होंने क्या किया कि उनमें से कुछ ईयर्स को 1929 टू 40 जो बिफोर वार ईयर थे, कुछ सेकेंड वर्ल्ड वार पहले, उसके बाद 1947 टू 68 जो ईयर्स थे, इनका डाटा अलग करके उसको OLS ऑर्डिनरी लीस्ट स्केयर उस पर फिट किया गया, रिग्रेशन रन किया गया, तो आपके पास जो कंजम्पशन फंक्शन उसमें आया दैट वाज C इज इक्वल टू 8.3, मीन C नॉट ऑटोनोमस कंजम्पशन वाज 8.3 व्हेन इनकम इज 0 एंड MPC was 0.89. The 8.3 in this equation represents C naught, while 0.89 represents small c mean MPC. In this way, again ये overall result regression run करने से ये consumption function जो है उसी को confirm करें, result are in accordance with the Keynesian theory. अब जो डिफरेंट कुछ ईयर थे, मतलब 19 को जब ये 29 टू 40 और 47 68, they confirmed the law of consumption and the empirical consumption function derived from the time series data for 29 to 40 and 47 to 57 and 58 to 68 are given the name of cyclical consumption function. अभी cyclical consumption function ये डिफरेंट छोटे छोटे 58 to 68 ये 10 साल का डाटा बनता है, 47 to 57 again only 10 years. So the period of the long run consisting of decades, मतलब अगर आप इन सारे सालों का इकट्ठा डाटा लिया तो उसमें कुछ ऐसे भी ईयर्स थे जो कि इसको फॉलो नहीं कर रहे थे, लेकिन अगर 10 ईयर्स का ये शॉर्ट रन अगर इसको समझे 10 ईयर्स को, तो ये डाटा जो है इसको फॉलो कर रहा था। अब जो यूएस गवर्नमेंट है वो आफ्टर वर्ल्ड वार 2 ये समझ रहे थे कि आफ्टर द वर्ल्ड वार लोगों की इनकम जो है वो कम होगी अकॉर्डिंग टू, मतलब वो पॉलिसी मेक करना चाहते थे, तो उन्होंने कहा कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो अब डिमांड फॉर मिलिट्री इक्विपमेंट्स है वो खत्म होगी तो लोगों की एवरेज इनकम कम होगी। तो क्या लोगों ने उन्होंने कानों में से कहा कि दे शुड ट्राई टू प्रिडिक्ट के क्या लोगों की कंजम्पशन भी अकॉर्डिंगली कम होगी या नहीं होगी, लेकिन जब रियल डाटा देखा गया तो कंजम्पशन कम होने से दे ऑब्जर्व दैट results were in opposite direction, that in 1958 prices disposable income fell from 229 billion to 1945 to 227, इनकम आपकी डिक्रीज हो गई, और 1946 में भी 206 से आगे 206 इनकम डिक्रीज हुई, लेकिन आपकी इस टाइम पीरियड में जो कंजम्पशन थी इट इंक्रीज फ्रॉम 183 बिलियन in 1945 to 203 billion in 1947. Meaning income and consumption are moving in opposite direction. It all is against the Keynesian law, which shows that along with the increase in income, the saving increased. But in this case, the consumption saving was not increasing. अगर आप इसको opposite apply करें। दूसरा, मैंने आप बच्चों से ये कहना था कि आप लोगों ने जो नोट्स कॉपी करवाए उनमें से एक बच्चे ने वो कॉपी ला के मुझे भी दी थी, उस कॉपी में ये पेज 402 नहीं है, और ये कंजम्पशन थ्योरी फाइल मैंने आप लोगों को शेयर की है या नहीं की? नो।
चलो ठीक है, मैं इसको दोबारा शेयर कर देती हूँ। पेज नंबर 402 नहीं है और मेरे ख्याल से 403 भी नहीं है। अगर नहीं है तो आप इनको ये ना कॉपी कर लीजिएगा और इसको कल देख के आइएगा। मे भी फिर आप लोगों ने जो कुछ बच्चों की असाइनमेंट देखी है, कुछ की नहीं, फिर आप लोगों ने शायद उसमें ये ना कंसिडर किया हो, अगर सबके पास ये पेज नहीं है। सबके पास। यस मैम। तो उसके बाद ये था क्वेश्चन कि व्हाई इन द लॉन्ग रन केन्जियन लॉ इज नॉट ओके, या इट वाज नॉट प्रूव्ड बाय द एम्पिरिकल एनालिसिस, लेकिन इन द शॉर्ट रन इट वाज प्रूव्ड। अब इसको मैं एक दफ़ा गो थ्रू हो जाती हूँ, लेकिन आप इसको ना नेक्स्ट क्लास में, मेरी ख्याल है कि कल मुझे क्लास लेनी चाहिए, उसमें हम इसको रिवाइज कर लेंगे कि साइमन कुजनेट का कंट्रीब्यूशन क्या था, कि उन्होंने किस तरह शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन को रिकनसाइल किया, कि दोनों अपनी जगह पे ठीक है। सिर्फ ये कि उसमें जो विद द पैसेज ऑफ टाइम शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन शिफ्ट अपवर्ड, कि जो लोगों की इनकम इंक्रीज होती है कंजम्पशन फंक्शन अपवर्ड होता है, और अगर शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन के डिफरेंट पॉइंट्स को आप ज्वाइन करें तो आपके पास लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन आता है, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। ये आप कल की क्लास में देख के आएगा। कल हम एक छोटी सी क्लास पे रख लेंगे। कल आपकी 11 बजे कोई है क्लास? जी मैम है क्लास। यस मैम, माइक्रो की 12 बजे फिर रख लूंगी एक क्लास। और दूसरा तो बच्चों, ये जो थ्योरी हमने अभी पढ़ी और जिसकी फोटो कापी आपके पास नहीं है, मैं वो फाइल आपके साथ शेयर करती हूँ, तो आप वो फाइल भी देख के और उसको कल प्रिपेयर करके आइएगा। कल मैं आपके साथ दोबारा टाइम नए सिरे से इसका मीटिंग या शेयर कर लूँगी, तो आप लोगों ने इसमें से जो पेजेस आपके पास नहीं है कंजम्पशन थ्योरीज के, वो आप इधर से डाउनलोड कर लीजिए। चलो बच्चों, क्लास का टाइम खत्म हुआ चाहता है तो अब इसे ख़त्म करते हैं, लेकिन मैं आपको एक कंजम्पशन थ्योरी वाली, जैसे मुझे लगता है मैंने आपको ये पहले भी चैप्टर शेयर किया जो पढ़ा है उसमें से, अदरवाइज आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए तो बच्चों आप पूछ सकते हैं। और आप ओके असाइनमेंट मैम। कुछ ना का कुछ नाम हो आपने शेयर किया होता है, कभी अंदर वो नहीं लिखा होता, अपना रोल नंबर, एनीवे जो भी है, अब आप अपना इसको एक दफ़ा देख लीजिए सारे को। अल्लाह हाफिज़ बच्चों। अल्लाह हाफिज अल्लाह मैम। हाफिज मैम।